یہ بات ہے 2009 کی کہ جب ایک میکسیکن ماڈل چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اندر انسانی بچوں کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ یہ جنت نظیر جزیرہ نہیں بلکہ شیطانوں کی آماجگاہ تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایپسٹین فائل میں عمران خان کا نام بھی سر فہرست ہے۔ نریندر مودی جو اپنے ملک میں گوشت کھانے کو ناپسند ہی نہیں بلکہ حرام قرار دینے کی کوششیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو شاکاہاری کہتا ہے، لیکن وہی اس جزیرے کے اوپر جا کے انسانی بچوں کا گوشت کھا رہا ہے۔ آخر ایلون مسک نے بھی ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ کر دیا۔ پوچھنا یہ تھا کہ یہ لنڈے کے لبرل سیکولر اور موم بتی مافیا آخر خاموش کیوں ہے؟ آج وہی ملالہ ایپسٹین کے حق میں ٹویٹ کرتی نظر آتی ہے۔ اس جزیرے پر جانا، ڈانس، شراب، چائلڈ سیکس، اس میں جو نام ہے آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ یہ محض سینکڑوں کم سن بچیوں کا بلاత్కాر نہیں بلکہ امریکن جسٹس سسٹم کا بلاత్కాر ہے۔ یہ بات ہے 2009 کی، جب ایک ماڈل میکسیکو کے معروف ہوٹل کے باہر کھڑی ہو کے یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں ایلیٹ کلاس کی ایک سیکس پارٹی چل رہی ہے، کہ جہاں صرف شراب اور عورت ہی نہیں بلکہ بچوں کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ لیکن کسی نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ ایپسٹین فائل ایک ایسے بدترین اور گھنونے جرائم کے اوپر مشتمل ایک کیس فائل ہے کہ جس نے صرف روح کو نہیں بلکہ ممالک کی پر اثر شخصیات کو بھی دہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو امریکہ میں 1953 میں پیدا ہوتا ہے، ایک مڈل کلاسز کا تعلق تھا، ایک اسکول ٹیچر تھا اور کسی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ رخ کرتا ہے وال اسٹریٹ کا، اور وال اسٹریٹ سے یہ بزنس مینوں کے ساتھ اس کے روابط ہوتے ہیں، وہاں سے فائنانس ایڈوائزری کا یہ اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو دنیا کے بالخصوص امریکہ کے جو بڑے بڑے بزنس آئیکن ہیں ان کا یہ فائنانس ایڈوائزر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد سے نہ جانے یہ سلسلہ کب سے شروع ہو رہا تھا، لیکن جو رپورٹڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ 1998 میں پہلی بار اس نے لٹل سینٹ جیم جزیرہ جو کہ امریکہ میں ہے اس کو خریدا اور اس کو اپنے پرائیویٹ جو ہے وہ فارم ہاؤس کے لیے اس نے استعمال کرنا شروع کیا۔ بظاہر یہ جنت نظیر جزیرہ، کس کو پتا تھا کہ اس کے اندر کم سن بچوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، سیکس سمگلنگ کی جاتی ہے، اور یہاں پہ انسانی گوشت کو کھانے اور کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی جزیرہ ہے کہ جو اس کو کرائم کی دنیا میں اس حد تک لے گیا کہ جو ایک بار یہاں پر آتا تھا ان کی فائل بھی بنتی تھی، اس کی تصاویر بھی بنتی تھی، اس کی ویڈیوز بھی بنتی تھیں، اور اس کے بعد پھر اس دنیا سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا تھا۔ جو یہاں پر آنے والے لوگ ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ معروف نام صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کا کہ 20 سال کا ایک بہت گہرا تعلق تھا، ان کا آنا جانا، ان کی ای میلز جو ہے وہ جیفری کے جیٹ میں ان کا جو ہے وہ متعدد بار سفر کرنا، یہ اب ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس میں مسلم ممالک کے کچھ پرنس حضرات بھی ہیں، برطانیہ کے شہزادے اور شہزادیاں بھی ہیں، اس میں انڈیا کے جو پردھان منتری ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی، ان کا نام بھی سر فہرست ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایپسٹین کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم تھے۔ اکثر جو ہے وہ رپورٹ میں ان کی جو ہے وہ کورسپونڈنگ میں جو میلز ہیں، جو پیغامات ہیں، وہ جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ جو اسرائیل کا دورہ تھا وہ بھی ایپسٹین کے مشورے کے ساتھ ہی طے ہوا تھا۔ وہاں پہ کن لوگوں کے ساتھ ان کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں وہ بھی ایپسٹین کی مشاورت کے ساتھ ہی طے ہوا تھا، اور پھر وہاں کے دورے کو جو ہے وہ سکسیس قرار دیتے ہوئے ایپسٹین نے ان کے لیے اپریسیشن کے کچھ الفاظ بھی کہے۔ نریندر مودی وہ شخص ہے کہ جو اپنے ملک میں گوشت کھانے والوں کے لیے گوشت کھانے کو ناپسند بھی کرتے ہیں، گوشت کو اپنے لیے حرام بھی قرار دیتے ہیں، اور خود کو شاکاہاری کہتے ہیں یعنی ویجیٹیرین، لیکن ایپسٹین کی شیطانی مجالس اور محافل میں جا کے ان کے لیے ڈانس، شراب، کم سن بچیوں کے ساتھ سیکس اور انسانی گوشت سب جائز ہو جاتا ہے۔
नाज़रीन, इस फहरिस्त में इमरान खान साहब का नाम भी आता है। मुतादिद जगहों पे एप्स्टीन ने नाम लेकर इमरान खान को कहा है कि ये गैर रवायती सियासतदान है। एक जगह पर तो उन्होंने कहा कि ये थ्रेट ऑफ पीस भी है, जो उनके अगराज़ व मकासद हैं यकीनन उसके लिए ये थ्रेट ऑफ पीस हो सकते हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि ये तैयब उर्दवान और प्यूटन से भी ज़्यादा गैर रवायती हैं। और एक जगह पर उन्होंने कहा कि ये खैर के कामों में जो है वो सफारतकारी में अपना एक असर व रसूख रखते हैं। इनको लंदन सोसाइटी लाइन भी कहा है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ की सोसाइटी में ये एक मारूफ शख्सियत है। लेकिन इन बातों से एप्स्टीन नेटवर्क से इमरान खान का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता और ना ही इमरान खान साहब का कभी इनके जजीरे के ऊपर जाना जो है वो रिपोर्ट्स में आया है, ना कोई तस्वीरें या इस तरह की जो है वो कोई शवाहद मौजूद नहीं है। नाज़रीन, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि एप्स्टीन फ़ाइल में किसी का नाम आ जाना उसका लाजमी नतीजा ये नहीं है कि एप्स्टीन के शैतानी जराइम में वो भी शामिल जुर्म है। आपने मिसाल तो सुनी होगी कि जब हाथी की सूंड में एक चींटी जाती है तो उसके लिए उसका जीना मुहाल कर देती है। एप्स्टीन, जो कि एक पैसे के हवाले से, इक़्तिदार के हवाले से, ताकत के हवाले से, अपने असर और रसूख के हवाले से एक मस्त हाथी था, इसकी सूंड में भी एक कम सिन बच्ची मानिंद चींटी घुसती है और फिर सब कुछ ख़त्म करके रख देती है। मार्च 2005 की बात है कि जब इसके खिलाफ एक कम सिन बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जाके रॉयल पाम के पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। ये कहती है कि हमें जो है वो किसी ज़राए से मसाज के लिए बुलाया गया कि आपने महज मसाज करना है, लेकिन वहाँ पर जब मैं गई और साथ मेरे एक सहेली थी तो वहाँ पर जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन हमें टॉवल में लिपटा मिलता है और उसके बाद जो हमारे साथ उसने किया वो नाकाबिले बयां है। नाज़रीन, इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये एक या दो कम सिन बच्चियां नहीं थी, बल्कि 2005 में 36 ऐसे केस सामने आए कि जिनके साथ एप्स्टीन कम सिनी की उम्र में रेप कर चुका था। नाज़रीन, हैरानकुन बात यह है कि 36 कम सिन बच्चियों के साथ जो है वो मुबैना तौर पे ज़्यादती विक्टिम मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इसको सिर्फ जो है वो 18 माह की सज़ा सुनाई जाती है। और उस 18 माह की सज़ा में भी इसके लिए सहूलत का सामान ये किया गया कि इसके लिए ये इजाज़त थी कि ये अपनी लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए 8 घंटे अपने ऑफिस जा सकता था। ये महज रात वापसी जेल में सोने के लिए आता था, लेकिन 18 माह से भी जो है वो 5 महीने पहले इसको रिहा कर दिया गया, जो कि इसके ताल्लुकात, ताकत, पैसा और असर व रसूख का एक मुँह बोलता सबूत है। नाज़रीन, ये 2008 और 9 के लगभग जो है वो ये रिहा होता है और उसके बाद अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, जहाँ पर जो है वो बेबस और बेकस जो विक्टिम थे वो इंसाफ का कत्ल होता हुआ देख रहे थे। लेकिन एक ऐसी सहाफ़ी थी कि जो चैन से नहीं बैठी, जूली नाइव ब्रान। जूली नाइव ब्रान ने तमाम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इकट्ठी की, वो तमाम विक्टिम से मिली, उसने जो है वो उनके इंटरव्यूज़ लिए और एक किताब लिखी, पर्वर्शन ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ का कत्ल। दरअसल वो इंसाफ का कत्ल नहीं कहना चाह रही थी, बल्कि वो कहना चाह रही थी कि एप्स्टीन ने महज 36 से ज़्यादा कम सिन बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं किया था, बल्कि ये बलात्कार अमेरिकन जस्टिस सिस्टम के साथ भी था। जूली ने 2018 में ये किताब लिखी। किताब के बाद जब लोगों के सामने विक्टिम स्टोरीज़ आईं, सबूत आए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई और उसके तमाम वो शैतानी जो अवामिल थे वो सब अवाम के सामने उसने ला के रखे, तो उसके बाद अवामुन्नास में गम व गुस्से की जो है एक लहर दौड़ी और फिर जुलाई 2019 को एप्स्टीन को पेरिस से वापसी पर दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। अभी केस चल ही रहा था कि ये मुर्दार अपनी बैरक में मुर्दा पाया गया। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex जेल trafficking. हुकाम का कहना तो ये है कि ये एक खुदकुशी है, लेकिन अक्सर लोग इस पे मुसर हैं कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया के पुरअसर तरीन लोग के जिनके रिकॉर्ड एप्स्टीन के पास मौजूद थे, उनकी फ़ाइल मौजूद थी, उनकी तस्वीर मौजूद थी, उनकी ईमेल्स मौजूद थी, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद थी, यहाँ तक कि उनकी वीडियोस भी इसके पास मौजूद थी। लिहाजा
एप्स्टीन का जिंदा रहना उनकी मौत का सबब बन सकता था और उनमें से कुछ लोगों ने अपनी हयात की बका के लिए इसको मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, 2019 की कैंपेन में सदर डोनाल्ड ट्रंप एक अरसे तक ये कैंपेन चलाते रहे, जो कि एप्स्टीन के पास बिल क्लिंटन के कुछ सबूत और शवाहद थे, जिसकी वजह से बिल क्लिंटन ने ही एप्स्टीन का मर्डर करवाया है। नाज़रीन, कोई शख्स ये ना समझे कि एप्स्टीन फाइल के ऊपर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि एप्स्टीन एक यहूदी निज़ाद शख्स था। मैं समझता हूँ कि दुनिया के जितने बड़े और महज़ब मज़ाहब हैं, ये कोई भी इस तरह के जराइम और कराइम करने की इजाज़त नहीं देते। लिहाजा जब कोई मुजरिम जराइम करता है तो उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो महज एक मुजरिम होता है। लेकिन पूछना ये था कि ये लंडे के लिबरल्स और सेकुलर और ये मोमबत्ती माफिया खासी खामोशी छाई हुई है। शायद इस वजह से कि जेफरी यहूदी था, शायद इस वजह से कि वो जाहो जलाल वाला था, शायद इसलिए कि वो अमेरिकन है, वो गोरी चमड़ी वाला है, शायद इसलिए कि वो इक़्तिदार और असर और रसूख वाला है, शायद इसलिए कि मलाला उसके हक़ में बोल रही है, शायद इसलिए कि वो आप ही के कबीले का शख्स था। मैं उस तहज़ीब, उस नेटवर्क और उस गिरोह से भी मुखातिब हूँ कि जो महज एक मलाला के ऊपर जब हमला हुआ था तो पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सर पे उठा लिया गया था और पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान, इस्लाम और अहले इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। आज वही मलाला 36 नहीं बल्कि सैकड़ों हज़ारों ऐसी कम सिन बच्चियाँ जो अंडर एज थीं, चाइल्ड अब्यूज़ भी हुआ, रेप भी हुआ, उनका जिनसी इस्तेहसाल भी हुआ, उनका बलात्कार भी हुआ, आज वही मलाला उसी शख्स के हक़ में ट्वीट कर रही है। जब पाकिस्तान में इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया जाता है। यह है वो दोहरा म्यार कि जिसकी वजह से दुनिया में तो शायद हमारी कुछ छूट हो जाए, लेकिन इंदल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ बड़ी शदीद तरीन पकड़ होगी। ये महज सैकड़ों हज़ारों कम सिन बच्चियाँ जो कि एप्स्टीन और उसके नेटवर्क की दरिंदगी का निशाना बनी हैं, ये महज ये बच्चियाँ नहीं हैं, बल्कि हर 9 मिनट के अंदर अमेरिका के अंदर 9 मिनट में एक बच्चा जिनसी ज़्यादती का निशाना बन रहा है। 4 में से एक बच्ची जो है वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना बनती है। लिहाजा मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जुर्म पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में है, ये जुर्म है और कोई मज़हब इसके करने की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा मुझे, आपको, हम सबको चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं ताकि इस गंदे तरीन सैलाब से मैं, आप और हमारे अहलो यार बच सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात को समझ के इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।